A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last three videos, we discussed a different important adjustment related to the cash flow statement. In the last three videos, we already discussed the different board examination questions related to the chapter cash flow statement. So now in this video, let's revise and exercise, practice all the important question which already asked by the examination in the CBSE examination for the subject accountancy. So in the last few videos, we already discussed the concept related to the provision for tax, and we can see that provision for tax can be identified and can be solved by the following three cases. The first case is when provision for tax is given only in the balance sheet. Case 2, when the provision for tax is given outside the balance sheet, it means it is given as an additional information. And the case 3 is when provision for tax is given outside the balance sheet as well as the inside of the balance sheet. It means it is given in the balance sheet as well as in the additional information. In the case 3, you know very well, there are basically two situations: when tax made is given as an additional information, or when the tax made is given as an additional information. So in this situation, when tax paid is given, so we find out the tax paid, and if there is any kind of the tax paid is given, so we calculate the tax made during the year with the help of the provision for tax account. In the last video, we already discussed the rules regarding the proposed dividend, and you know very well, according to AS4, consequences and events occurring after the preparation of balance sheet date, the proposed dividend can be treated only for the amount which are related to the previous year. It means अगर कोई proposed dividend बैलेंस शीट में एज एन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी गिवन होता है, तो सिचुएशन में हम प्रीवियस ईयर को हम काउंट करते हैं, बट करंट ईयर को कोई भी काउंट नहीं किया जाता, यानी करंट ईयर को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है. बिकॉज यू नो वेरी वेल, प्रपोज्ड डिविडेंड इज अ डिविडेंड which are proposed by the shareholder in the annual general meeting, and generally annual general meeting will be held after the preparation of the final account. It means after the accounting year. So that's why proposed dividend will not be taken as an liability, it will be taken as an contingent liability. And according to the AS4, the proposed dividend related to the previous year will be treated as an proposed dividend paid and made, and the current year proposed dividend will not take it into the consideration. So let's we take the few questions related to the proposed dividend. And the question is, it is very simple question, and it is already given in the examination by the CBSE. Suppose it is a balance sheet, and in the balance sheet there is an information related to the proposed dividend in other factors as well as in the other factor, that is an equity share capital. Equity share capital will be for the 2018, that is in current year, is 6 lakh, and for the previous year is 7 lakh. Okay, sorry, it is in 4 lakh. The next information is 8% preference share capital. Capital is 3,50,000 and 2 lakh. The third one is a surplus, and you know very well what is a surplus. Is balance in the statement of profit and loss. The current year value is 4 lakh and the previous year value is 1,50,000. And the last information is dividend payable, and the dividend payable for this current year is 10,000, but for the previous year there is no information. As an additional information, we can say that a lots of the adjustment are given outside the balance sheet. The first additional information is proposed dividend. The first additional information is dividend was proposed
at the rate of 10% for the previous year and 15% for the current year. So short में अगर हम इसको explain करें तो we can say that dividend was proposed 10% for 2017 and 15% for 2018. Okay, and the one more information is also given outside the balance sheet, that is an interim dividend of 30,000 and interim dividend 30,000 rupees, 30,000 was paid on 31st December 2017. सो ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ही सीरियस लगेगा, बहुत ही टफ लगेगा, बट फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन contain a lots of hint in this balance sheet as well as in the additional information. इक्विटी शेयर पहले था 6 लाख 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर था पहले 3.5 लाख फिर 2 लाख, पहले 2 लाख था, फिर अपोजिट देखना है, प्रीवियस ईयर दिस एंड करंट ईयर दिस. सरप्लस है 1,50,000 4 लाख एज वेल एज डिविडेंड पेबल लास्ट ईयर कुछ नहीं, करंट ईयर 10,000. करंट डिविडेंड प्रपोज्ड है प्रीवियस ईयर के लिए 10% एंड करंट ईयर के लिए 15%. और इंटरिम डिविडेंड हमें 30,000 हमने पे किया है कब, 31st December 2017. एंड क्वेश्चन इज दैट शो हाउ द अबव इंफॉर्मेशन विल बी ट्रीटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. यानी जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन सारी इंफॉर्मेशन को कैसे शो करेंगे. सो यू नो वेरी वेल, इन सारी इंफॉर्मेशन को जब हम शो करते हैं तो डिविडेंड का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो होता है नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट यू कैन सी दैट 1,50,000 एंड नाउ इज 4 लाख. So the net profit according to the balance sheet, in other words we can say that the net profit after extraordinary items, at different types of the extraordinary items is calculated when we find out the surplus which shown in the liability side of the balance sheet. So सबसे पहले हम इसको दिखाते हैं क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. एंड यू वेरी वेल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. जो लेकिन जो बैलेंस शीट में जो सरप्लस दिया होता है वो क्या होता है, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है. ठीक है. सो जब हम इसको सबसे पहले इसका इफेक्ट दिखाएंगे इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट द नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्रा ordinary items and the value is, difference निकाल लो, 1,50,000 that is in 4 lakh and the net profit after extraordinary item is 2,50,000. Okay, and now the additional information is also given, the proposed dividend. As you can see that dividend was proposed 10% for the previous year and 15% for the current year. तो अभी मैंने क्या समझाया कि डिविडेंड अगर प्रपोज्ड है तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हम कंसीडर नहीं करते, जबकि प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड था उसको हम कंसीडर करते हैं. तो उसमें हम ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का. सो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कितना प्रपोज्ड है, दैट इज एन 10%. किस ईयर का, फिर प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल कितनी है, 4 लाख. सो 4 लाख का 10% and the value is 40,000. Okay, the next information, as you can see that हमने डिविडेंड पे किया है 30,000 रुपीज का. ठीक है, किस पे किया है, was paid on the 31st December 2016. इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इंटरिम डिविडेंड अलग होता है और प्रपोज डिविडेंड अलग होता है, तो ऐसा आप कंफ्यूज मत होइएगा. सो इंटरिम डिविडेंड आपने कितना पे किया है, 30,000. और आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर पे भी आपको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड. तो वो भी डिविडेंड हमें ऐड करना पड़ेगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर. कितना है, पहले था 2 लाख, अब है 3,50,000. बट कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हम किस पे डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, हमेशा बिगिनिंग बैलेंस पे. ये जो 1.5 लाख रुपए इश्यू हुआ है
ड्यूरिंग द ईयर जो 2 लाख से 3,50,000 हो गया, जो 1,50,000 है वो ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने शेयर इशू किया। सो 1,50,000 पे हम तब तक डिविडेंड नहीं देंगे जब तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं गिवन होगा कि हमने प्रेफरेंस शेयर कब इशू किया है। बिगिनिंग में इशू किया होता तो पूरे 350 पे हम डिविडेंड देते, एंड में इशू होता तो नहीं डिविडेंड देते, मिड में होता तो हम जितने मंथ्स काउंट आते उतने महीने का हम उसको डिविडेंड प्रोवाइड करते। बट यहाँ क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, दैट्स वाई हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे ही डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, एंड द ओपनिंग बैलेंस इज 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट? 8%। बट इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि जब क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, इसका मतलब हम कब मानेंगे डिविडेंड कब शेयर कब इशू है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज 16,000। इतनी सारी चीजें ऐड करने के बाद प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, एंड द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर, ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सो इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 250 प्लस 40 290, 290 प्लस 30 320, 320 प्लस 16 336। So net profit before extraordinary 336. And you know very well proposed dividend का effect सिर्फ net profit before extraordinary item calculate करते ही नहीं होता, बल्कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब हम फाइंड आउट करते हैं वहां पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो भी डिविडेंड आपने पे किया है, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, चाहे वो आप इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे आपने डिविडेंड पेड किया हो, कहां पे? प्रेफरेंस शेयर का, ये सारी ही वैल्यूज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होंगी? कंसीडर की जाएंगी। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो सिचुएशन में हमने डिविडेंड कितना पे किया? इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया? 30,000, क्योंकि माइनस में जाएगा क्योंकि पे किया, as well as we are talking about the preference share dividend paid on preference share पे कितना डिविडेंड हमने पे किया? that is in 16,000, उसको भी कंसीडर करेंगे। और जो प्रपोज डिविडेंड है वो हम लोगों ने कितना पे किया? 40,000. So total outflow from the cash outflow from the financing activity is 30 plus 16 46 plus 40 86. ये सारी चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट का था, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, और डिविडेंड पेबल, ये डिविडेंड पेबल का मतलब है वो डिविडेंड जो अभी हमें देना है, अभी हमने पे नहीं किया। सो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती तो हम लोग उस पर डिस्कस करते, बट इट इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच आर गिवन इन दिस एग्जाम, इन दिस क्वेश्चन। सो ये है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी और दूसरा है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड यू कैन सी दैट इन सारे एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द एनी कंपनी। सो प्लीज नोट डाउन this question in your copy properly. Let's we move to the next question, and the next question is in the balance sheet as at 31st March 2017 and 18, the assets is also given, that is in plant 50,000 for the current year and the previous year is 40,000. This is in balance sheet, and in this balance sheet the value of the plant is given current year, previous year, and the value of the plant in the current year is 50,000 and in the previous year will be 40,000. And additional information is given, plant costing, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। सो हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है आपको। प्लांट कॉस्टिंग 25,000 and the
accumulated depreciation on this plant is rupees 8,000 was sold for rupees 12,000। यानी प्लांट था जिसकी कॉस्ट थी 25,000 रुपए, जिसपे आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया था। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? अब तक का डेप्रीशिएशन आपने कितना चार्ज किया था? 8,000, आपने उसको सोल्ड कर दिया 12,000 रुपीज में। एंड सेकेंड एडजस्टमेंट इज depreciation on plant was rupees 25,000। सो आपको क्या करना है? फाइंड आउट द इफेक्ट ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट या शो द इफेक्ट ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। शो द इफेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस का जो इफेक्ट होता है वो दो जगह पड़ता है, एक ऑपरेटिंग में और दूसरा इन्वेस्टिंग। कैसे हम इसका इफेक्ट निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्लांट की सेल वैल्यू कितनी थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू प्रिपेयर दी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जो भी प्लांट अकाउंट गिवन है उसे हम बनाएंगे। एंड प्लांट अकाउंट किस नेचर का होता है? रियल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? रियल अकाउंट नेचर का होता है। सो रियल अकाउंट में यू नो वेरी वेल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल अप्लाई होता है। सो ओपनिंग बैलेंस हम किस साइड लिखते हैं? डेबिट में। एंड क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट इज 40,000 whereas the closing balance of the plant is 50,000। ये तो क्लियरली दिया है। और डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर प्लांट पे कितना चार्ज हुआ है? 25,000। सो बाय डेप्रीशिएशन 25,000 ये हो गया। अब कह रहा है प्लांट था जिसकी कॉस्टिंग थी 25,000 रुपए की, जिसपे डेप्रीशिएशन लगा था 8,000 रुपए, उसको हमने कितने में बेच दिया? 12,000 रुपए में बेच दिया। सो जब हम बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? बाई बैंक। सेल किया, कितने में सेल किया? 12,000। अब तुम खुद कॉमन सेंस से यूज करो। कोई प्लांट था 25,000 जिसपे डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 8,000। सो नाउ उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? 25,000 माइनस 8,000। सो उसकी बुक वैल्यू निकाल लो। एक्चुअल वैल्यू थी प्लांट की 25,000 या कॉस्ट थी, उस पे आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 8,000। सो नाउ उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 17,000। सोल्ड कितने में कर दिया आपने? 12,000। सो 5,000 आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। 5,000 क्या हो गया? लॉस। और लॉस को किस साइड लिखते हैं? इधर। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये हो गया लॉस। कितना? 5,000। ओके। एंड आफ्टर दैट हम अकाउंट को टोटल करेंगे। इधर आ रहा है कितना? 25 प्लस 5 30 80 92। इधर भी कितना आना चाहिए? 92। डिफरेंस किधर आ रहा है? डेबिट में। और डेबिट के डिफरेंसेस को क्या लिखते हैं? परचेस। परचेस किया हमने प्लांट। कितना प्लांट परचेस किया? 52,000। तो ये बन गया आपका प्लांट अकाउंट। ओके। अब इसी प्लांट अकाउंट की हेल्प से हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे कहां पर? कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। सो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यू नो वेरी वेल कि वी हैव टू फोकस ऑन द some kind of the important thing, just like a non cash and non operating expense। आपको पता है depreciation and loss on sale of the assets will be taken as a non operating expense। so depreciation जो है आपका 25,000 रुपए, और जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना? 5,000। इसे हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे अंडर द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका? इन्वेस्टिंग में। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में
ठीक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, सो जब हम परचेस करते हैं कोई भी प्लांट तो ये हमारा आउटफ्लो होता है। सो परचेज ऑफ प्लांट कितना 52,000 ये आउटफ्लो हो गया, और सेल ऑफ प्लांट ये आपका इनफ्लो हो गया। सेल से पैसा आया, परचेस से पैसा गया, तो नेट कितना आया 40,000, इसे कहेंगे कैश यूज्ड under investing activity. So you can see that how we will show such kind of the adjustment in the cash flow statement. First of all, we have to prepare the assets account, it means the plant account, and with the help of the plant account, we see that depreciation and loss on sale of the plant and 25,000 and 5,000 respectively, and it will be shown in the cash flow from the operating activities as a non-cash and non-operating expense, as well as the sell value of the plant and the purchase value of the plant will be taken under the investing activity as an outflow and inflow respectively. So you can see that 12,000 आपको पैसा आया from the investing activity and for 52,000 आपके पास से पैसा गया as an outflow because आपने प्लांट खरीदा. So net आपके पास investing activity से पैसा गया कितना 40,000, ये माइनस में आएगा. ये जो है आपका 30,000 ये आपका पॉजिटिव में रहेगा अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सो इन तरह के क्वेश्चंस को आप लेकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है. Okay, so please note down this solution in your copy properly because it is a very important question. And the 2 years information is given 2019 and 2020. In the 2019 the value is 4,50,000 and current year value will be of 10 lakh. Okay, this is on surplus, and the additional information is given related to the proposed dividend is the contingent liability. Contingent liability, that is a proposed dividend, because you know very well according to Companies Act 2013 proposed dividend will be taken as a contingent liability. So proposed dividend will be taken outside the balance sheet as a contingent liability, and the value is proposed dividend for the previous year. Proposed dividend for the previous year is 1,50,000, whereas current year is 2,50,000. And the question is clearly about it. Tell me, show how the above information will be treated in the cash flow statement. Show the effect of above information on cash flow statement. So आपको ये जो above information है इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट बताना है. सो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, सो यू नो वेरी वेल, सबसे पहला इसका इफेक्ट पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका इफेक्ट पड़ेगा. जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, तो उसमें आपको पता है हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक, ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. सो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट 4,50,000 एंड द करंट ईयर प्रॉफिट इज 10 लाख. सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, एंड द प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग द ईयर इज 5,50,000. एंड यू नो वेरी वेल, अभी जस्ट हमने समझाया कि प्रपोज डिविडेंड का जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसका कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है, बट करंट ईयर की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो हम यहां क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. प्रपोज्ड
dividend for the previous year will be 1,50,000. So profit before हो जाएगा 7 lakh. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रपोज डिविडेंड और सरप्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं, कौन सी एक्टिविटी, दैट इज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो जो प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का उसे हम पेड मानते हैं. प्रपोज्ड डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का है उसे हम डिविडेंड पेड मानते हैं, दैट इज एन 1,50,000. सो ये माइनस में शो एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो यू कैन सी दैट प्रपोज डिविडेंड का बेसिकली दो इफेक्ट पड़ता है. पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में ऐड किया जाता है, और दूसरा इसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो ट्रीट किया जाता है, यानी इसे डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी प्रॉपरली, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. ओके, सो लेट्स वी रिकॉल while we prepare the cash flow statement, how we will calculate the net profit before extraordinary item, because most of the student having a confusion under this topic. So how we will calculate the cash flow from net profit before extraordinary item while we calculating the cash flow from operating activity. So in this situation, under the cash flow from operating activity, we have to calculate the net profit before extraordinary items. In short word, we can say that net profit before tax. So this is calculated if we take the profit after tax or profit as per balance sheet. अगर हम प्रॉफिट लेते हैं आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट लेते हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट, सो उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. और इस सिचुएशन में हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं उसको ध्यान से देखना. उसमें हम ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड पेड, वो भी किस ईयर का, proposed dividend which are related to the previous year, and dividend paid for the during the year, provision for tax made during the year, and transfer to general reserve, interim dividend paid. तो इन सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और लेस करते हैं कुछ आइटम्स, सारे आइटम्स नहीं, कुछ आइटम्स हम लोग डिडक्ट करते हैं. दैट इज एन रिफंड ऑफ टैक्स. सो रिफंड ऑफ टैक्स हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, एंड इट विल बी नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. ओके, सो ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि एग्जामिनेशन में जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्योंकि जब हमें पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, सो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों अलग अलग कैलकुलेट करने से पहले, यानी बिफोर the preparation of the cash flow from the operating activity, we have to calculate the cash flow from we have to calculate the net profit before extraordinary item. और net profit before extraordinary item हम तब calculate करते हैं जब हम प्रॉफिट ले रहे हो बैलेंस शीट से या प्रॉफिट ले रहे हो आफ्टर टैक्स. अगर हम प्रॉफिट लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल से तो ये फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है. इसलिए मेरी हर एक वर्ड को, हर एक चीजों को ध्यान से सुनिए कि अगर हम प्रॉफिट लेते हैं कहां से, बैलेंस शीट से या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो हम ये सारा एडजस्टमेंट करेंगे
लेकिन अगर हम प्रॉफिट ले रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल से तो इतना एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. So in this video we discussed lots of the concept related to the different topic of the cash flow statement, and I hope आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, रिवाइज किया, वो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर.